And in today's session, we are going to start the same chapter along with NCERT. These are all not to be just, this is, इसमें से आपके क्या क्या आते हैं पेपर में, that I'll underline it. This is only a note to the teacher. जैसे आपको मैंने स्टार्ट करा था, when I started and I summarized, I told you that एक हम जो है, we are studying about the economy. And when in your 11th or 12th standard, those who are going to take economics as a subject, they would understand कि इन छोटी छोटी चीजों को पढ़ने से हम लोगों को कितना फायदा मिलता है. And you can also correlate it to your daily life. And it is also about what are the things, जब हम कहते हैं इंडिया जो है वो डेवलप नहीं है, इंडिया का जीडीपी कम है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो व्हाट आर दोज वर्क, किस चीज को कहते हैं. एंड देन व्हाट हैपेंस इज, मोस्ट ऑफ अस, हम में से आधे लोगों को ये नहीं पता होता है हम कहाँ काम कर रहे हैं. आई मीन टू से द ऑफिस, the sector in which we are working, whether it is organized or disorganized, we are more bothered कि हमें कितना सैलरी मिल रहा है. ओ, वो इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है तो he is in good post. The money is not the criteria. Main is आपको उसके साथ के जो बेनिफिट्स हैं क्या वो मिलते हैं, एंड उनको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज में डालते हैं. और एल्स हु इज ओनिंग, जैसे आप देख सकते हो, दीज आर ऑल योर 1 मार्कर क्वेश्चन क्लास 10. जैसे शॉप ओनर्स, कैजुअल वर्कर्स. कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं? जो रोजमर्रा काम करते हैं, डेली वेज. जो लेबर्स होते हैं, दे वर्क ऑन डेली वेजेस. Then vegetable vendors, workshop mechanics, domestic, ये जो है they are all called as disorganized sectors. Disorganized क्यों? क्योंकि they don't have any kind of facilities. अगर कोई भी what you call as mishap हो जाए, उनके साथ कोई हादसा हो जाए, there is no security. So this is disorganized. And then there are sectors, उन्हीं sectors को हम लोग कहते हैं who is owning it. If the sectors are owned by government, जिसमें government जो है वो it is the main, वो public sector. And if it is under some private people, that's called as private sectors. So we would be taking all these components. Then what is the meaning of unemployment? क्योंकि आप लोग भी कल जो हो पढ़ोगे लिखोगे, some of you might be having your own business, some of you might work in some company, some might, तो उस वक्त में there is one what we call as term called unemployment. तो unemployment कौन सा situation होता है? Then what is GDP? Gross domestic product. What is gross domestic product? पूरी कंट्री के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, जो भी प्रोड्यूस होता है उसका फाइनल वैल्यू होता है जीडीपी. इसमें कोई भी चीज जो बाहर, देश से बाहर जा रही है, वहां से आ रही है, दैट इज नॉट टेकन. And then we have taken all these surveys, as I have written in my notes also, NSO. पहले इसको National Sample Survey कहते थे, but now it is called as NSO, National Statistical Office, जो right now under Planning Commission काम करता है, that is नीति आयोग. So this is the chapter. ये आपके pictures हैं. You may be asked to identify these pictures. आप ये देख सकते हो कि these are some of the economic activities.
जैसे आपका जो राइट साइड है, दिस इज अ पोस्टमैन, और जो पोस्टमैन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर। देन ये जो है ये आपका कैजुअल लेबर है, दे आर ऑल, ये आपके फार्मर्स हैं, ये आपके शॉपकीपर्स हैं, मीन्स they are different kind of people working in different kind of activities. So let us now start. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example the cultivation of cotton, जो कि हम पहनते हैं. For the growth of cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine, climate. So it is a natural product. Similarly, in case of dairy, we are dependent on the biological process, that is आपके egg वगैरह जो आते हैं वो. Then milk, cheese. Similarly, minerals and ores are also natural. When we produce a good by exploiting the nature, that is called as primary sector. यानी कि प्राइमरी सेक्टर का डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर, चाहे वो आपके फॉरेस्ट हो, चाहे वो आपको मिल्क हो, या फिर आपके मिनरल्स और ओर्स हो, ये सब कुछ आपका प्राइमरी है. व्हाई? बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर. इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राइमरी मतलब फर्स्ट, मेन. इसी को हम लोग यूज करते हैं इन डिफरेंट वेज. Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called as agriculture and related sector. मतलब प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. फर्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड, यानी कि प्राइमरी. द secondary sector covers the activity in which natural products are changed into other forms through manufacturing that we associate with industrial activity. यानी कि उन चीजों को जिनको हम we can change it into something else, उनको हम लोग बोलते हैं secondary, industrial. It is the next step. The product is not produced by nature. इसको हमें चेंज करना पड़ता है. लाइक हमें कॉटन बॉल्स मिलते हैं, तो कॉटन बॉल्स हमारा प्राइमरी है. वेरएस जब हम कॉटन बॉल्स को रोल करके कॉटन बना देते हैं, उससे हम कपड़ा बना देते हैं, वो हमारा बन जाता है सेकेंडरी, यानी कि इंडस्ट्रियल. The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. This can be a factory or workshop or at home. जैसे दूध से हम पनीर निकालते हैं, दूध से हम घर में घी निकालते हैं. For example, using cotton fiber from the plant, we spin yarn and weave clothes. शुगर केन से हम बनाते हैं शुगर एंड गुड़. फ्रॉम द अर्थ हम बनाते हैं ब्रिक्स, और ब्रिक्स को हम यूज करते हैं बिल्डिंग्स में. Thus, the sector gradually becomes associated with different kinds of industry, और इसीलिए हम सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं. This has come in your exam. भले पेपर में आया हुआ है. Then there is a third category, जिसमें कोई चीज बनती नहीं है, जिसमें कोई चीज पैदा नहीं होती है. लाइक हमारे कॉटन पैदा हुआ, या फिर कॉटन से हमने क्लोथ बनाया. नो,
These are activities that help in the development of primary and secondary. ये जो है प्राइमरी मतलब कि जो पहले दो सेक्टर्स हैं उनको हेल्प करती है. These activities do not produce a good, but they are an aid or support for production. मतलब उनके थ्रू हम हेल्प लेते हैं. जैसे goods that are produced in the primary or secondary would need to be transported. Then we need shop. Then we need store. Then we need telephone. Then we need banks. तो ये जो है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, इनको हम बोलते हैं टेरिशरी. आपका ये वाला जो क्वेश्चन है दिस हैज कम एज अ मैच द कॉलम एंड ऐसा लिखा हुआ आता है कॉटन प्राइमरी डैश सेकेंडरी सॉरी डैश टेरिशरी, ऐसे आता है, ऐसा भी आया हुआ. सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विस, मतलब ये हेल्प करते हैं, सर्विस देते हैं. ये गुड्स नहीं देते हैं, गुड्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं. ये हमें सर्विस देते हैं और इसीलिए हम टेरिशरी सेक्टर को बोलते हैं सर्विस सेक्टर. यानी कि प्राइमरी हो गया एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, सेकेंडरी हो गया मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसमें हम इंडस्ट्री के थ्रू किसी प्रोसेस के थ्रू चीजों को चेंज करते हैं. एंड टेरिशरी आपका हो गया सर्विस सेक्टर जो हेल्प करता है. Service sector also includes some essential services that may not directly help in production. For example, teachers, doctors, washermen, barbers, cobblers, lawyers, administrative work, accounting. Yes, sir. In recent times, new services based on IT such as internet cafe, ATM booths, कॉल सेंटर्स. कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? आपके वो जिनमें हम फोन करते हैं व्हेन हमारा कोई प्रॉब्लम होता है तो वी नॉर्मली कंप्लेन इट. सॉफ्टवेयर कंपनीज बिकॉज दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग अस द सर्विस. ये देखिए आपका ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है एंड फर्स्ट है, दीज आर मतलब ये तीन सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे ही आए हुए हैं इन द बोर्ड्स. For example, the very first question says, complete the above table to show how sectors are dependent on each other. ये question ऐसे की जगह ऐसा आया है, explain how all the sectors are dependent on each other. कैसे? अब प्राइमरी में आप मान लो कि से आपके पास एक खेत है, ठीक है? खेत में बहुत सारे आपके जो है टन्स ऑफ यू आर गेटिंग द व्हीट, राइट? अब आप उस व्हीट का क्या करोगे? नेचुरल है कि आप उस व्हीट को यू हैव टू आपको उसे ग्राइंड करना पड़ेगा टू गेट द फ्लोर. आपको आटा चाहिए तो आपको उसे ग्राइंड करना पड़ेगा. एंड देन आपको आटा चाहिए और आपके पास सरप्लस है, ज्यादा है, आप क्या करोगे? यू हैव टू सेल इट आउट, राइट? तो दैट मीन्स आप ग्राइंड करोगे चाहे घर में ही क्यों ना कर रहे हो, आपको ग्राइंडिंग मशीन चाहिए एंड ग्राइंडिंग मशीन कम्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग. अब आप अपना सामान जो आपके पास सरप्लस है यू वांट टू सेल आउट, तो कैसे लेकर जाओगे? आपको कोई गाड़ी चाहिए होगी, यानी कि सर्विस सेक्टर. दैट मीन्स ऑल दीज सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अपने आप में कोई सेक्टर काम नहीं कर सकता. अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप कैसे काम करेगा? जब तक उसके पास रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगे वो किस चीज को तब्दील करेगा? एंड सर्विस सेक्टर जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रीज होंगी तो बैंक की जरूरत पड़ेगी ना, लोग पैसा कमाएंगे तो बैंक में डालेंगे ना. तो ऑल दीज सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. देन
जो उस दिन आपको मैंने जब व्हेन आई हैड समराइज द चैप्टर आई टोल्ड यू डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिशरी यूजिंग एग्जांपल्स, यानी कि आपको जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, टेरिशरी किसको बोलते हैं, एंड इसके साथ में यू हैव टू गिव द एग्जांपल. दिस वाज अ क्वेश्चन फॉर 3 marks. The next is classify the following list under primary, secondary and tertiary. यानी कि टेलर कौन है, मतलब प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है. बास्केट वीवर, यानी कि जो बास्केट बनाता है. फ्लावर कल्टीवेटर, जो फूल उगाता है. मिल्क वेंडर, फिशरमैन, प्रीस्ट, कुरियर, वर्कर्स इन मैच फैक्ट्री, मनी लेंडर, गार्डनर, पॉटर, बी कीपर, एस्ट्रोनॉट, कॉल सेंटर एम्प्लॉयज. ये कौन कौन से सेक्टर्स में आते हैं, एंड इसमें से 3 आए थे. मतलब वो ऐसा आया था, टेलर प्राइमरी, सॉरी टेलर सेकेंडरी, एंड इसके साथ आया था आपका कॉल सेंटर एम्प्लॉय. so this is tertiary, and this same can come as a match column also. ये जो same question है, this can also come as match the columns, right? that means हर एक इंसान, पहला हमारा जो है वो ये है कि पहला हमारा है कि ऑल द पीपल वर्क. चाहे आप घर में जस्ट खाना बनाते हो, सफाई करते हो, अपनी बुक्स को निकाल के तरीके से रखते हो, which I don't think आप लोग करते होंगे, but still if you are doing, they are all non-economic, because वो आप करते हो अपने लिए. wherein if any activity is done to earn money, उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू प्राइमरी या एग्रीकल्चर रिलेटेड, सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग, एंड टेरिशरी या सर्विस सेक्टर्स. राइट नाउ वी नीड टू कंपेयर कौन सा सेक्टर ज्यादा मतलब कि पैसा देता है और कौन सा सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है. The various production activities in the primary, secondary and tertiary produce a large number of goods and services. मतलब मैंने आपको बताया कि वैल्यू क्या है वो बताना होता हम लोगों को, एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू नंबर ऑफ पीपल. तो अब हमें यही देखना है कि किसमें ज्यादा प्रोडक्शन है और किसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट. हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब अब देखो, प्राइमरी में एक किसान है, ठीक है, एक किसान है, उसके पास जो है जमीन है, उसमें आपके आ रहा है शुगर केन, ठीक है. अगर ये शुगर केन जो है इसे कंज्यूमर ने, यानी कि जो ले खा रहा है उसने खरीदा और वो गन्ने को चूस गया, तो शुगर केन इज द फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि उसके बाद उसका कोई यूज नहीं होगा. लेकिन अगर उस शुगर केन को एक हलवाई ने खरीदा, एक स्वीट सेलर ने खरीदा, और उसने उसको जो है ऐड किया टू स्वीट्स, अपने स्वीट बनाने में उसने ऐड किया, एंड देन उसने उस मिठाई को बेचा टू अ कंज्यूमर, तो यहां पर शुगर केन नहीं, आपका जो शुगर ऐड हुआ है, यानी कि जो हमने मिठाई खरीदी है ना, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. यहां हमारा जो मिठाई है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. अंडरस्टूड. यहां शुगर केन को लिया और उस इंसान ने खा लिया, तो शुगर केन वॉज द फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि उसके बाद हमें शुगर केन को किसी भी चीज में यूज नहीं करना था. लेकिन एक स्वीट सेलर है, उसने शुगर केन को लेके उसे चीनी, उसने चीनी लिया, पहले शुगर केन से वो चीनी बना, फिर चीनी से वो
हलवाई के पास गया, हलवाई ने उसे मिठाई में डाला और मिठाई को कंज्यूमर ने खरीदा, तो द स्वीट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी वैल्यू को, जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी वैल्यू को, तो हम इधर में तो शुगर केन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद शुगर केन का कोई यूज नहीं था, शुगर केन खत्म। लेकिन इस जगह पर इन द सेकेंड एग्जाम्पल हम स्वीट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ना कि शुगर केन की। क्यों? क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट था। तो जब स्वीट स्वेलर ने उसे खरीदा होगा, ऑलरेडी उसमें शुगर की वैल्यू होगी, और जब वो बेचेगा उसमें शुगर की वैल्यू ऐड करके बेचेगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए इफ यू आर बाइंग से एक आप मतलब कि एक मिठाई खरीदते हो काजू कतली, तो उसमें काजू की वैल्यू होती है, चीनी की वैल्यू होती है, मैदे की वैल्यू होती है, और आपके दूध की वैल्यू होती है, एंड तब जाकर हम उसे खरीदते हैं। तो दैट मीन्स हम दो बार दूध को या मैदे को या चीनी को काउंट नहीं करते हैं। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको हम यूज कर रहे हैं, उसके वैल्यू को हम लेते हैं। बिकॉज ऑलरेडी जब वो बेचता है, जो जिस चीज को, जैसे शुगर केन, सॉरी जैसे आप काजू कतली है, उसमें ऑलरेडी उसने वैल्यू ऐड कर दिया, तो हम दोबारा वैल्यू को ऐड नहीं करते। दिस इज कॉल्ड एज डबल काउंट। with so many thousands of goods and services provide, you might think it is an impossible task. आपको लगता होगा कि भाई कैसे, हाउ कैन वी एड अप कार, कंप्यूटर, नेल, फर्नीचर? तो हम क्या करते हैं, द इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ goods and services should be rather adding up the actual number। यानी कि आपके जो 10,000 किलो वीट इज सोल्ड एट 20 रुपीज, द वैल्यू ऑफ वीट इज 2 लाख। देन कोकोनट है तो इसकी वैल्यू ऐसे, हम 15 रुपए करके नहीं, टोटल जो हमने किया है, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। Remember, not every good or services produced and sold need to be counted. It makes sense only to include the final goods and services। ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है कि why do we add only the final goods and service। ये रहा क्वेश्चन आपका, this is the question आपका बोर्ड का। because in contrast to final goods, goods such as wheat flour in this example are intermediate। मतलब जब हम बिस्किट बना रहे हैं तो उसमें चीनी, आटा सब डालते हैं, तो हमें बिस्किट की वैल्यू लेनी है, ना कि चीनी और आटे की। क्योंकि जब उसने खरीदा होगा ना उसने इंडस्ट्रियल्स ने, तो उसने ऑलरेडी अपने बिस्कुट में उसको ऐड कर दिया होगा। द वैल्यू ऑफ, ये इसका आंसर है क्लास 10, the value of final goods already include the value of all the intermediate। यानी कि उस गुड्स को बनाने के लिए जिन जिन सामान की जरूरत होती है, उन सब की वैल्यू हमारे जो चीज हम खरीदते हैं उसकी वैल्यू में ऐड होती है। The value of 80 is the final, includes the value of floor also। और इसीलिए हम जो है 2 बार काउंट नहीं करते। To count the value of flour and wheat separately is therefore not correct, because then we are counting it number of times। उसको हम डबल काउंटिंग बोलते हैं। तो एक ही बार हम लेते हैं, यानी कि हमारे पास अब हमें कैसे कैलकुलेट करना, प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टेरिशरी, और इन सबको खरीदता कौन है, कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कौन होता है, जो कंज्यूम करता, उसको यूज करता है। ठीक है, अगर कंज्यूमर कोई भी चीज रॉ ले रहा है, जैसे मिल्क, तो मिल्क की वैल्यू ऐड है। ठीक है, लेकिन अगर वो मिल्क की जगह दही ले रहा है,
चीज ले रहा है, आइसक्रीम ले रहा है, तो उसकी वैल्यू ऐड होगी, मिल्क की नहीं। सिमिलरली जो भी आपके टेरिशरी सर्विसेज वो लेता है, जैसे हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं तो इंटरनेट के पेमेंट देते हैं हम, वो तो वो जो फाइनल हम पैसा देते हैं उसकी वैल्यू को ऐड किया जाता है, और इसको ऐड करके हमारा बन जाता है जीडीपी, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी का जो फाइनल गुड्स है। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production, यानी कि प्राइमरी से कितना आया, सेकेंडरी से कितना आया, टेरिशरी से, and when we sum up this comes as gross domestic product of a country. It is the value of all the final goods and services produced within a country during a particular year. And GDP shows how big the economy is. GNP होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो कि जिसके अंदर हम और भी वैल्यूज ऐड करते हैं। GDP होता ओनली द वन which have been produced within the country in a year. In India, the mammoth matlab very big task of GDP measuring is taken by central government ministry. The ministry, with the help of various departments of all the Indian states and union, collect the information of total volumes of goods and services, फिर GDP कर. It's a very what you call as difficult task. हर एक में से अब दूध कितना बिका, दूध से हमारे जो सामान बनता है वो सेकेंडरी में चला जाएगा, और दूध को ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज होता है वो टेरिशरी में चला जाएगा। तो हर एक डिपार्टमेंट से सारा डेटा लिया जाता है, उसको टोटल करके हम जीडीपी निकालते हैं। नाउ व्हाट इज द हिस्टोरिक चेंज, मतलब पहले लोग जो थे दे यूज टू मैक्सिमम, पहले जमाने में क्या होता था, अपना मतलब कि खेत होते थे, ठीक है, अपने खेत के अंदर दे वुड बी गेटिंग एवरीथिंग, और उसके बाद क्या होगा, बार्टर सिस्टम होता था, मेरे पास ये है तुम्हारे पास ये है, चलो एक्सचेंज कर लिया। एंड देन छोटे छोटे आपके हाट मार्केट्स होते थे जहां वो बेचते थे, बट देन आपका इंडस्ट्री सेटअप हुए अराउंड 1800s, देन आपके ये सामान को अलग अलग तरीके से यूज किया जाने लगा। सेकेंडरी में क्या होता है, यू कैन चेंज इट, लाइक कॉटन से कॉटन क्लोथ बनता, लेकिन कॉटन को आप सिल्क के साथ रखकर कॉटन सिल्क बना सकते हो, कॉटन को आप नायलॉन के साथ रखकर कुछ और बना सकते हो, पॉलिएस्टर बना सकते हो। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपकी चीजें आई, तो लोग इंडस्ट्रीज की तरफ आए, एंड कुछ लास्ट 100 years में देर इज अ शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टेरिशरी। लोग अब जो है दे वांट मोर टूवर्ड्स द सर्विस सेक्टर, यानी हेल्थ, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। Generally, it has been noted from the histories now developed countries that initially primary was the most important for economic activity. In fact, अभी मैं जब फ्राइडे को when I had gone to the village of ours, I was surprised there was no shop there. मतलब दो छोटे छोटे से शॉप्स थे, वो तो हमारे बाथरूम जितने होंगे। एंड देन आई आस्क कि यहाँ तो कोई सब्जी की दुकान नहीं है, कोई कपड़ों की दुकान नहीं है, तो देन द पीपल टोल्ड कि वहां पर अगर कपड़े वपड़े चाहिए होते तो दे गो टू द नियर बाय टाउन, और सब्जी वहां लोग खरीदते नहीं है, सबके पास अपना खेत है, तो जो उनके खेतों में आता है वो उसको यूज करते हैं, एंड इफ दे रिक्वायर दे एक्सचेंज विथ ईच अदर। दिस वॉज हाउ आई थिंक पुराने जमाने में भी लोग रहते होंगे। As the methods of farming changed, agriculture sector began to prosper. It produced more food
Many people could take many other activities. There were number of increasing craft person traders, buying and selling increased. Then there were transporters, administrators. But initially क्या था? सिर्फ primary, starting. Over a long period, more than 100 years, new methods of manufacturing were introduced. Factories came up. Then those people who earlier worked on farms now began to work in factories. ये आप मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ोगे. They were forced to do, as you read in history chapters. People began to use more goods that were produced in factories. पहले क्या होता था, जितने भी कपड़े होते थे, all the clothes, everything what you are writing, यानी कि आपके पेपर, everything was handmade. Even till date you get the handmade sheets. I think you all might be using it also. आप लोग यूज भी करते होंगे उसको. हैंडमेड शीट्स को जो है मतलब रोल करके बनाया जाता था. लेकिन अगर आप कभी भी दुकान में जाओगे, जस्ट गो एंड आस्क, एक हैंडमेड शीट कम फॉर 25 रुपीज, वेरएस एक चार्ट पेपर आपका शायद 3 या 4 रुपए में आता है. व्हाट इज द डिफरेंस? चार्ट पेपर इज मेड इन दी इंडस्ट्री और हैंडमेड आपका हाथ से बनता है. तो जैसे जैसे चीजें सस्ती हो गई मिल मेड, तो लोग मिल मेड खरीदने लग गए. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. Hence, over a time, a shift took place. In the past 100 years, ये वाला question, I think in most of the schools they give, there has been a shift from secondary to tertiary in developed countries. You go to any developed country, you will find more of the secondary sectors. In India, agricultural sector is still dominant. The service sector has become the most important in total production. Most of the working people are also employed in service. So how? This we will be doing. This comes in the paper. मतलब ऐसे आपके जितने भी ग्राफ क्वेश्चंस हैं, दे आर ऑल इम्पोर्टेंट क्लास 10. ये सारे ग्राफ क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं. दिस इज शोइंग द जीडीपी आपका 73 to 74 में. अगर आप देखो तो प्राइमरी में ज्यादा, देन आपका सेकेंडरी कम, एंड देन टेरिशरी था. बट अब 2013 एंड 14 में टेरिशरी ज्यादा, सेकेंडरी सेकेंड नंबर पे, और एग्रीकल्चर सबसे कम. So this is the question. These are the questions, right? This has come in the paper also. Rising importance of tertiary sector. क्यों हमारा सर्विस सेक्टर अब important हो गया? Why? Over the 40 years between 73 to 74 till 14, while production in all the sectors have increased, it has increased more in tertiary. क्यों? It is because first आपको ये चारों लिखने हैं बच्चे. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. This may be a 3 marker question. This may be a 5 marker question. चाहे 5 मार्क्स का हो तो भी आपको लिखना है, 3 में हो तो भी आपको लिखना है. First, in any country, several services such as hospitals, educational institutions, P&T, police station, court, village offices, municipal corporation, defense, transport, etc. are required. और ये हमारे बेसिक्स हैं. And in a developing country, the government has to take responsibility. मतलब लोगों को ये चीजें तो बेसिक मिलनी चाहिए. Second, the development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport. क्योंकि इंडस्ट्री तभी रन करेगी जब ट्रांसपोर्ट होगा. एग्रीकल्चर तभी आपका सक्सेसफुल है जब आपके पास ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ट्रेड यानी कि बेचना या खरीदना. इसीलिए टेरिशरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. थर्ड,
As the income level rise, certain sections of people started demanding more services like restaurants, tourism, shopping, private hospitals, private schools. 70s में आप देखो नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कितने थे और अभी देखो दिस इज देयर। और इसके क्योंकि हमारे पास पैसा है, हमारे पास मतलब हमारे पास नहीं, मीन्स द पीपल आर अर्निंग सो दे वांट बेटर क्वालिटी। फोर्थ, over the past decade, new services like IT have become important और इसी वजह से कुछ सालों में आपका सर्विस सेक्टर जो है इट इज ग्रोइंग। However, you must remember, not all the service sector is growing equally. मतलब ऐसा नहीं है कि सभी को फायदा हो रहा है, नो। आईटी सेक्टर में जरूर फायदा है। दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द आईटी इंडस्ट्रीज आर रियली बीइंग वेरी यू कैन से बूमिंग, उनको बहुत फायदा मिला है। all those who are engaged in the IT services, सॉफ्टवेयर सर्विस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उनको। लेकिन जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, छोटे छोटे जिनके पास अपना काम है, सर्विस इंडस्ट्री में है, लेकिन दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ मनी, उनको कोई फायदा नहीं मिला। सर्विस सेक्टर इन इंडिया employs many different kinds of people. At one end, there are limited number of service that employ highly skilled and educated work. जैसे आपका IT service, doctors, engineers, lawyers. At the other end, there are very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers, repair persons, transport persons, जैसे रिक्शा पुलर, ऑटो ड्राइवर। These people barely manage to earn a living, मतलब उनको 2 टाइम का गुजारा भी मुश्किल होता है। And yet they perform these services क्योंकि उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो दैट मीन्स सिर्फ एक पार्ट आपका टेरिशरी में भी ग्रो कर रहा है, दैट वी कैन से टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सेक्टर्स हमारे जो है आपके जो है ग्रो कर रहे, बट नॉट ऑल अदर सेक्टर्स। इफ वी लुक इनटू द अदर सेक्टर्स लाइक हेल्थ, अभी भी हमारा मैं हमेशा आपको ये बात बताती हूँ, हेल्थ इज ऑलवेज इग्नोर्ड, अभी इतना नहीं हुआ। नेक्स्ट इज, मतलब ये था हमारा गुड्स। अगर आपके ग्राफ में आ गया 1973 से 74 में अगर आप देखो तो इफ यू सी दिस इज अ शेयर दैट इज अराउंड 50% आपका पीपल वर इन सॉरी ये जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूट कर रहा था। 10% आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था एंड आपका 40% कर रहा था प्राइमरी। whereas in 2013 to 14 आपका अराउंड 15% कर रहा है दिस, एंड देन आपका कर रहा है 65% कर रहा है टेरिशरी, एंड ओनली अराउंड 20% आपका जो है दैट इज डन बाय मैन्युफैक्चरिंग। देयर इज इंक्रीज, लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज किसमें हुआ है? टेरिशरी। Next is, where are most of the people employed? This is one of the very ironical situation. पेपर का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। आयरॉनिकल का मतलब है सबसे ज्यादा आपका जो प्रोडक्शन है, जीडीपी में जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कौन सा सेक्टर कर रहा है? टेरिशरी। लेकिन सबसे कम एम्प्लॉयमेंट किस वाले सर्विस में, कौन से वाले सेक्टर में है? टेरिशरी में, जबकि ज्यादा होना चाहिए लेकिन कम है। दैट इज द आयरॉनी। Graph 2 presents the percentage share of 3 sectors. Now you can directly see the changing importance. A remarkable fact is, यही आपके पेपर का क्वेश्चन है,
India, that where there has been a change in the share of three sectors. In GDP, a similar shift has not taken place in employment. Graph 3 shows share of employment in 77 and 2017 and 88. और आज भी primary sector continues to be the largest employer. You can see in 77 to 80, 78, 71% people were working in primary sector. 11% were working in secondary sector and around 18% were working in tertiary. और अब आपके जो है around 44% are working in primary, around 25 are working in secondary and only around 31% are working in tertiary. जबकि अगर हम देखें तो टेरिशरी हमारा 65% हमें जीडीपी दे रहा है, तो इसमें आपके एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होना चाहिए, बट नहीं है. Why did not a similar shift of primary sector happen in case of employment? Because आपका आंसर क्वेश्चन ये और आंसर, it is because enough jobs were not created in the secondary and tertiary sector. Even though industrial output or production of goods went up more than 9 times during period, employment only 3 times. The same in tertiary. While the production has increased, but employment अभी हमारा increase नहीं हुआ. As a result, more than half of the workers in the country are working in primary, specifically in agriculture. उससे क्या होता बच्चा, आपका जो इनकम होता फॉर द कॉमन पीपल वो कम हो जाता, बिकॉज एग्रीकल्चर में आपका जो इनकम है वो कम होता है, सबसे ज्यादा होता है टेरिशरी में, मेनली इन producing only 1/6 of GDP. In contrast, secondary and tertiary produce the rest of produce, whereas they employ less. What it means, there are more people in agriculture than necessary. मतलब अब एग्रीकल्चर में जो लोग काम करते हैं, हमें एग्रीकल्चर तो चाहिए ही चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है उसको हमने बंद करना है, नो, वो तो हमें चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चर में हमारे पास एक्स्ट्रा लेबर्स है. अगर हम उन लेबर्स को कोई और नौकरी दे दें, देन व्हाट विल हैपन, जीडीपी तो हमारा बढ़ेगा ही, एट द सेम टाइम इंडस्ट्रीज हमारी बढ़ेंगी, एंड अगर उनको नौकरी मिलेगी तो उनका अपना स्टेटस बढ़ेगा, एंड ओवरऑल हमारी कंट्री का जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगा. What it means आपके पेपर में आता है, what is under employment or disguised unemployment. There are more people in agriculture than necessary, so even if you remove a few people out, production will not be affected. मतलब उनको उतना पैसा नहीं मिलता है. For instance, taking the example of small farmer, Lakshmi has 2 hectares of unirrigated land. उसमें जोवर एंड अरहर लगता है. All 5 members of our family work in the plot throughout the year. मतलब उसमें जरूरत नहीं है 5 लोगों की, उसमें 2 जनों की जरूरत है, बाकी 3 के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए वो वहां पे वैसे ही काम करते. They have nowhere else to go for work. You will see everyone is working, none remains idle, but actually their labor effort gets divided. लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता, सिर्फ काम को हम बांट लेते हैं, लेकिन उससे हमारा इनकम नहीं बढ़ रहा. This is a situation of underemployment where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential. This kind of underemployment is hidden in contrast to some who does not have a job and clearly visible as
Hence it is also called disguised unemployment. मतलब what is disguised unemployment? आपको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी काम करेंगे, सिर्फ 2 जने काम करेंगे ना, तो भी वो जो जमीन है वो उतने ही टाइम में तैयार होगा। वो जो बाकी उनको कर रहे हैं वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, बट उनके हेल्प से पैसा नहीं आ रहा है। Now, supposing a landlord Sukram comes and hires 1 or 2 members of the family to work on his land. Lakshmi's family is now able to earn some extra income. Since you do not need 5 people, तो 2 जने अगर सुखराम के पास जाकर काम भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि यहाँ जो लक्ष्मी के फार्म से 3 जने काम कर रहे हैं उसकी भी इनकम आ गई, और जो 2 जने बाहर काम कर रहे हैं उसकी भी आ गई। There are lakhs of farmers like Lakshmi in India. यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से कई लोगों को रिमूव कर दें, उनको कोई और काम दे, तो उनका इंप्रूवमेंट हो सकता है। दिस underemployment can also happen in other sectors. For example, there are casual laborers in service sectors. जैसे अगर आप यहाँ पे जाओ दिलशाद गार्डन में, there in the morning if you go to the Suraksha nursing home वाले रोड पर, you will see a number of people. मतलब this is the example I am giving you in Dilshad Garden. But ऐसे आपके जो लेबर चौक है, you can find everywhere. In Noida it's there. There are number of laborers who will be sitting. काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो किसी को हेल्प कर देंगे, चल यार मैं काम कर रहा हूं, तू मेरे साथ हेल्प कर, बट वो काम उतना ही होगा। द मनी इज नॉट गोइंग टू बी मोर। हम एम्प्लॉयमेंट को तभी मानते हैं जब उससे हमें इनकम मिलता है। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन डूइंग ऑड जॉब। Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of service on the street pushing a cart, selling. They may be spending the whole day but earn very little because उनके पास opportunity नहीं है. So what we need is, we need to create employment. सिर्फ टेरिशरी सेक्टर के बढ़ने से, सिर्फ आपके ट्रांसपोर्ट के सर्विसेज बढ़ने से क्या फायदा होगा? जब तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट ना मिले, मोर एम्प्लॉयमेंट मीन्स मोर इनकम, मोर इनकम मीन्स अ वेरी गुड इकोनॉमी। अब घर में 5 जने हैं, दो इंसान काम कर रहे हैं, ठीक है, वो काम बांट रहे हैं। मैंने उस दिन आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कॉल द शॉपकीपर, कि भाई एक शॉपकीपर है, उनकी वाइफ भी बैठी है, उनका बेटा भी बैठा हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि पूरे दिन की उनकी इनकम उतनी ही है। अगर अंकल अकेले बैठेंगे तो भी उतनी इनकम होगी, और 2 जने बैठेंगे तो भी उतनी इनकम होगी। तो अगर वो बाकी जो 2 जने दे आर एम्प्लॉयड समवेयर एल्स, तो व्हाट विल हैपन? दे विल हैव एक्स्ट्रा इनकम। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इन rural areas as well as in the urban, we also have seasonal unemployment. What is seasonal unemployment? As the word suggests, season, यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन में आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपके पास काम नहीं होता है। इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जब आपका खेत तैयार हो रहा होता है, when the soil is being prepared, the laborers are required. When the seeds are sown, laborers are required. And थोड़े इनिशियल पीरियड में the laborers are required, but once आपका क्रॉप तैयार हो रहा है, you don't require anyone. आपको बस थोड़े से लेबर्स की जरूरत पड़ती है। एंड देन जरूरत पड़ती है when you have to harvest, उनकी कटाई करनी पड़ती है। तो वो जो बीच का पीरियड होता है ना, जब आपकी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, उस वक्त में द फार्मर्स डोंट हैव एनी वर्क। कुछ खाली बैठे रहते हैं, कुछ लोग अपना छोटा मोटा घर में ही, मतलब कि मे बी दे आर हैविंग देयर ओन ग्राइंडिंग मिल, दे आर हैविंग देयर शॉप, वो कर लेते हैं। और कुछ लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं टू द लोकल सिटीज, वहां छोटे मोटे काम करते हैं, लाइक रिक्शा पुलर्स। This is how seasonal unemployment is there. The same is there in the urban areas also.
सिटी में जब आपकी गवर्नमेंट जो है फ्लाईओवर्स बना रही है, बिल्डिंग्स बना रही है, डैम्स बना रही है, तब आपको काफी जरूरत पड़ती है लेबर्स की। लेकिन जब बारिश का मौसम है या फिर कोई अन इवेंट मतलब कि इवेंटफुल सर्कमस्टांस हो गया, तो फिर इनको नौकरी नहीं मिलती। ड्यूरिंग द पैंडेमिक देयर वाज इन द न्यूज, बहुत सारे दिखाते थे बेचारे बड़े सारे कैजुअल लेबर्स यहाँ से बिहार तक पैदल गए थे, बिकॉज द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वाज ब्लॉक्ड। इसीलिए तो इतने सारे लोग होते हैं, सो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड दे मे नॉट बी गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। इवन रिक्शा पुलर्स, कॉबलर्स, इनको कहाँ मिलता है? बारिश होती है तो हम थोड़ी अपने जूते बनवाने जाते हैं, बारिश होगी तो हम रिक्शा पुलर्स को थोड़ी यूज करते हैं, तो देन दे डोंट अर्न। दिस मीन्स हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन विच हैज टू बी डेड। इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी रीडिंग कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे टैकल कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स निकाल रही है फॉर हेल्पिंग द अनएम्प्लॉयड पीपल। जैसे हमारे यहाँ देर आर सम स्टेट जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अलाउंस देता है, देन नरेगा इज देयर, देन देर आर सर्टेन अदर स्कीम्स। और फिर हम पढ़ेंगे अबाउट ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, and last but not the least, the sectors which are owned by public, private or corporate, right? So with this, I'll be ending up today's session.